Hello students, welcome to our channel Zine Rocks. Today we are going to start the exercise 3.2 of third chapter, that is arithmetic progression. In that second question, find AP. It means here the sequence is given and we have to prove that this sequence is in AP. ये जो sequence दिया है वो arithmetic progression है. First हमें ये prove करना है and after that if it is an AP, then we have to find 28th term. 28th term, it means T20. Okay, so first we will find whether this sequence is an AP or not. For that we have to write first term, that is A. First term is minus 12. Then difference B. For difference the formula is T2 minus T1. T2 second term, that is minus 5 minus ये जो फॉर्मूला का माइनस है वो, एंड फर्स्ट टर्म इज माइनस 12. सो माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 12, that is 7. नेक्स्ट डिफरेंस T3 minus T2. T3 that is 2 minus T2 that is minus 5. So 2 plus 5, that is 7. Minus minus plus. Third, T4 minus T3, that is 9 minus 2 equal to 7. Fourth difference, T5 minus T4, that is 16 minus 9, 7. Next difference, T6 minus T5, 23 minus 16, that is 7. और ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस लास्ट टर्म तक लेके जाना है. अगर डिफरेंस सेम आ रहा है 7 7 7 7, तो वो हमें लास्ट तक करना पड़ेगा. अगर डिफरेंस यहाँ पे 7 7 और फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 आ गया, तो जैसे ही डिफरेंस चेंज हो गया तो वहां पे ही सम को स्टॉप करो और फिर हम लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स is not constant, therefore it is not an AP. लेकिन अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमें लास्ट टर्म तक उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा. लास्ट डिफरेंस T7 minus T6, 30 minus 23 is equal to 7. So here I can write the difference between any two consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an AP. So ये हमने प्रूव कर लिया कि ये जो सीक्वेंस है वो AP है. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड 28th टर्म. 28th टर्म, तो ये जो टर्म है उसके लिए फॉर्मूला है Tn. Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. ये फॉर्मूला है Tn. whenever the question is about term, whenever we have to find term, 28th term, 16th term, 9th term, 15th term, so term के लिए फॉर्मूला है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. So this is the formula of term Tn equal to A plus n minus 1 into D. Now we have to find 28th term, that is T20. So here I will write T20. n के प्लेस पे क्या आएगा 20 equal to A. We have the value of A, that is minus 12 plus n. N here n is 20. 28th term. So 20 minus 1 and difference is 7. Now you have to just calculate minus 12 plus 20 minus 1, 19 into 7 minus 12 plus 19 sevens are 19 into 7, 9 sevens are 63, 7 ones are 7 plus 6, 133, and 133 plus minus 12, 12 minus करेंगे तो 121. Your answer will be 121. Fifth sum, find the 27th term. Find the 27th term, and here
AP is given 9, 4, -1, -6, -11 and so on. Okay, so in this AP, first term is 9. Difference, formula of difference is T2 minus T1, that is 4 minus 9. Second term minus first term, answer will be -5. And now simple 27th term, it means we have to find T27. So the formula of Tn is A plus n minus 1 into D. T27 equal to 9 plus 27 minus 1, difference is -5. n, यहाँ पे जो n के प्लेस पे हमने लिखा है 27, वही n यहाँ पे आएगा 27. T27 equal to 9 plus 26 into -5. 26 into -5, याद रखो पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद एडिशन होगा. पहले एडिशन मत करना कभी भी, पहले क्या होगा मल्टीप्लिकेशन. 26 into 5, 6 5 are 30, 5 2 are 10, 130. So T27 equal to 9 minus plus minus multiplication is 130. Therefore T27 equal to -121. मैंने ये वीडियो में सेकेंड एंड फिफ्थ सम सॉल्व किया है. थर्ड एंड फोर्थ सम इज योर होमवर्क. थर्ड एंड फोर्थ सम खुद से करना है, सेम है ये सम जो मैंने किया वैसा ही सेम. क्वेश्चन 6, फाइंड हाउ मेनी 3-digit नेचुरल नंबर्स. हाउ मैनी 3-digit natural numbers are divisible by 5. How many 3-digit natural numbers are divisible by 5? Whenever in question these words how many, जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड्स आते हैं how many, it means we have to find n numbers. जब भी क्वेश्चन में how many वर्ड्स आते हैं, how many ये क्वेश्चन में आ गया, याद रखो हमें फाइंड करना है n. how many n, क्वेश्चन में आ गया how many, we have to find n. ओके, नंबर्स हमें फाइंड करना है. how many 3-digit natural numbers, the series of 3-digit natural numbers starts from 100 to 999. 3-digit natural number, क्वेश्चन में क्या किया है 3-digit natural number. So first 3-digit natural number is 100 and last 3-digit natural number is 999. 999 के बाद जो नंबर आएगा वो है 1000 and 1000 it means 4-digit number. So यहाँ पे हमारा सीरीज जो है 3-digit नंबर का वो हो जाएगा 100 to 900. Now in this series we have to find how many numbers are there which are divisible by 5. ये जो सीरीज है 100 to 999 तक, ये सीरीज में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं. 5 से डिवाइड होते हैं तो वी हैव टू राइट हियर द नंबर्स which are divisible by 5 in this series are, first 100 ही रहेगा, 5 से डिवाइड होता है 100, 5 into 20 100. नेक्स्ट विल बी 105, 5 का डिफरेंस हो जाएगा ना, फर्स्ट 100 तो उसके बाद आता है 101, 102, 103, 104. ये जितने भी नंबर्स हैं वो 5 से डिवाइड नहीं होते.
तो 100 के बाद आएगा 105, नेक्स्ट विल बी 110, नेक्स्ट नंबर विल बी 115 and so on. But here in this series we know that the last number, last 3 digit number is also divisible by 5. कोई एक 3 digit नंबर है लास्ट में, लेकिन वो कौन सा नंबर है? तो लास्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे कौन सा है? 999, वो डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। 998, 997, 996 ये नंबर भी डिविजिबल बाय 5 नहीं है। तो लास्ट नंबर है 995। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि 5 से डिविजिबल है? जिसके यूनिट प्लेस पे 5 या 0 रहेगा, यूनिट प्लेस पे 5 या 0, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। तो ये नंबर मैंने यहाँ पे लिखा 995, ये नंबर लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है। इसके बाद भी 3 डिजिट नंबर है 995 के बाद 996, 997, 998, 999, लेकिन ये जो नंबर्स मैंने अभी बताए वो 5 से डिवाइड नहीं होते। तो ये जो मुझे मिला 100 to 995, ये मेरा हो गया सीक्वेंस, ये मेरा हो गया सीक्वेंस, और वी कैन से एपी, ये मेरा हो गया एपी। तो ये एपी में गिवन हम लिख सकते हैं ए फर्स्ट टर्म 100, फर्स्ट टर्म 100, डिफरेंस t2 minus t1, 105 minus 100 that is 5, डिफरेंस मेरा हो जाएगा 5। और एक चीज अभी ये एपी में है जो है लास्ट टर्म। एपी में अगर लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं tn से, लास्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे tn दैट इज लास्ट टर्म। अभी तक हमने जितना वीडियो में सीखा उसमें हमने क्या देखा कि जो एपी दिया रहता है क्वेश्चन में वो एपी ऐसे रहता है 100, 105, 110, 115 एंड सो ऑन डॉट 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 करके क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट टर्म हमें कभी भी एपी में नहीं दिया था, लेकिन ये फर्स्ट टर्म जो है जहां पे हमें लास्ट टर्म है हमारा एपी में, तो वो लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं tn 995। सो ए है, डिफरेंस है, tn है, एंड वी हैव टू फाइंड नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स, ये जो सीरीज है उसमें कितने नंबर्स है, n। फॉर्मूला tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। tn, ये देखो tn ये रहा मेरा वैल्यू tn, क्या है वैल्यू tn का? 995। a दैट इज 100 प्लस n, अभी ये जो n है वो n के प्लेस पे 995 मत लिखना, ये जो n है वो नंबर्स है, और ये जो 995 है वो tn है, tn लास्ट टर्म। तो ये n के प्लेस पे n ही रहेगा क्योंकि वो तो हमें फाइंड आउट करना है, n हमें फाइंड आउट करना है, तो n का n माइनस 1 एंड डिफरेंस है हमारा 5। सो 995, ये जो 100 प्लस यहां पे आएगा तो माइनस 100 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ये माइनस करेंगे तो 895 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ये इंटू 5 मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो 5 यहां पे आएगा तो डिवाइड, 895 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1, ये 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 7 जा 35 एंड 5 9 जा 5 1 जा 5, 3 9, 5 7 जा 35, 4 5, 5 9 जा करेक्ट, इक्वल टू n माइनस 1, और अभी 179 माइनस 1 यहां पे आएगा तो प्लस 1 इक्वल टू n, देयरफॉर n इक्वल टू 180, तो ये n इक्वल टू 180। तो लास्ट में हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर देयर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। लास्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। 7th sum, the 11th term and 21st term, 11th term that is T11, 11th term and 21st term of an AP
are 16 and 29 respectively. Then find the 41st term. Then find 41st term, that is T41. Okay, so in this question AP is not given and T11 and T21 ये ऑलरेडी दोनों टर्म्स हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिए हैं एंड वी हैव टू फाइंड थर्ड टर्म, और एक टर्म को फाइंड आउट करना है, दैट इज 41st टर्म T41. तो यहाँ पे हमें जो गिवन दिया है क्वेश्चन में T11 एंड T21 उसको ही हम यूज करेंगे. फॉर्मूला हमारे पास है Tn का, तो Tn का फॉर्मूला यूज करके हम आगे सॉल्व करेंगे. T11 दैट इज Tn फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हमें दिया है T11. ओके, T11 है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा T11. A फर्स्ट टर्म तो क्वेश्चन में है ही नहीं, A का A रहेगा प्लस n. ये देखो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है 11, तो n के प्लेस पे आएगा 11 माइनस 1. डिफरेंस भी क्वेश्चन में नहीं दिया तो d का d. ओके, Tn के प्लेस पे मैंने लिखा T11 क्योंकि मेरे पास T11 है, क्वेश्चन में गिवन है, तो T का T रहेगा, n के प्लेस पे 11. A और D दोनों क्वेश्चन में नहीं है तो A और D वैसे लिखा. n के प्लेस पे 11 तो यहाँ पे 11 माइनस 1. T11 का वैल्यू है मेरे पास देखो 16, तो यहाँ पे T11 के प्लेस पे मैं लिखूंगा 16 इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 10D. इसको मैं अरेंज कर रहा हूं यहाँ पे A प्लस 10D इक्वल टू 16. ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन. ओके, वैसे ही हम सेकंड को सॉल्व करेंगे. अगेन Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अभी मेरे पास है T21. A क्वेश्चन में नहीं है, n के प्लेस पे 21 माइनस 1. डिफरेंस भी क्वेश्चन में नहीं है. T21 का वैल्यू दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या है 29. A प्लस 21 माइनस 1 20D. अगेन अरेंज करेंगे तो A प्लस 20D इक्वल टू 29. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. नाउ लेट अस अज्यूम दैट दिस बोथ इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन. एक्चुअली हम देखने जाएंगे तो लॉजिक वाइज ये लीनियर इक्वेशन ही है. A and D both are variables like x, y, mn, ab, ln. तो ये क्या है, दोनों वेरिएबल है A and D. तो ये दोनों इक्वेशंस क्या हो गए, लीनियर इक्वेशंस. और लीनियर इक्वेशंस को जैसे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं वैसे ही ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो यहां पे मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 1. सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट. A प्लस 20D इक्वल टू 29. A प्लस 10D इक्वल टू 16. सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट इट मीन्स माइनस, तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा. ये माइनस, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस. नाउ हियर प्लस A एंड माइनस A वो दोनों कैंसिल हो जाएगा. 20D माइनस 10D 10D. 29 माइनस 16 29 माइनस 16 13. D इक्वल टू 13 अपॉन 10. ये 10D मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, 10 वहां पे जाएगा तो डिवाइड. देयरफॉर D इक्वल टू 1.3. एक जीरो है, डिनोमिनेटर में एक जीरो है, तो ये जीरो का मतलब न्यूमरेटर में एक नंबर के आगे पॉइंट आ जाएगा 1.3. डिफरेंस मिल गया हमें. यही D का वैल्यू पुट D इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1.3 इन इक्वेशन 1. मैं 1 में पुट करता हूं. A प्लस 10D इक्वल टू 16. A प्लस 10 इंटू 1.3 इक्वल टू 16. A प्लस 1.3 इंटू 10. 1.3 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा.
पॉइंट रिमूव हो जाएगा, एक जीरो है तो पॉइंट एक नंबर के आगे चले जाएगा, इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 13, a इक्वल टू 3, ये मिल गया a। अगर हमारे पास a एंड d ये दोनों वैल्यूज है तो हम इजीली कोई भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, T41। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा Tn का फॉर्मूला अगेन, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वी हैव टू फाइंड T41। a का वैल्यू मिल गया 3 प्लस n, ये देखो n के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 41 माइनस 1, डिफरेंस क्या है 1.3, 3 प्लस 40 इंटू 1.3, याद रखो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा उसके बाद एडिशन, सो 3 प्लस 40 इंटू ये हो जाएगा 52, एक्चुअली 520, एक पॉइंट है तो आगे पॉइंट 52, देयरफॉर T41 इक्वल टू 55। नेक्स्ट एथ सम 11 8 5 2। In this AP, which term is number minus 151? AP हमें दिया है 11 8 5 2 and last number is given minus 151. Okay, so in this sequence, in this AP, we have to find which term, at which term the number is 151, मतलब कौन से टर्म में, सेकेंड टर्म, फिफ्थ टर्म, 58th टर्म, 61st टर्म, ऐसा कौन सा टर्म है, कौन सा प्लेस है जहां पे 151 नंबर आएगा। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड n, रिमेंबर दिस, वी हैव टू फाइंड n, कौन सा टर्म है, कौन से नंबर का टर्म है वो हमें फाइंड करना है। सो हियर A11, डिफरेंस T2 माइनस T1, 8 माइनस 11 दैट इज माइनस 3, एंड अगेन मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट टर्म दैट इज माइनस 151, लास्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे Tn से, लास्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे Tn माइनस 151। अगेन सेम फॉर्मूला, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म Tn हमारे पास है Tn माइनस 151, A11, n हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 1, डिफरेंस इज माइनस 3, माइनस 151, ये प्लस 11 यहां पे आएगा तो माइनस 11, n माइनस 1 इंटू माइनस 3, माइनस 151 माइनस 11 माइनस 162 इक्वल टू n माइनस 11 इंटू माइनस 162 माइनस 3 एंड दिस सेकेंड ब्रैकेट, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, सो माइनस 3 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा डिवाइड, इक्वल टू n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा दैट इज 54, इक्वल टू n माइनस 1, 54 माइनस 1 यहाँ पे आएगा तो प्लस 1, इक्वल टू n, therefore n equal to 55. Here we have to write statement, therefore the number minus 151 is at 55th term.